हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। माउंटेन्स। There is a mountain is the most important, and here also discuss economical significance. The mountains is a plateau and plain. The body by present the day land features of the earth as a surface produced by the deformation of its crust. Among them to the mountain are the most aware the inspiring landform. About 27% of the earth as a surface is covered by the mountains. Generally, they are uplifted is the portions of the earth as a surface, which are much higher is a contrast and to be the surrounding area. But all the is uplifted or the elevated to the area are not a mountain. In fact, there is a slope together give rise to a particular form of land, which we identify as the landform. From example, the ability to the protection of Tibet, which is about 4,500 meters high above the sea level, or it is called to a plateau and not a mountain. There is the most important here. Example, the level of protection of the Tibet, which is about 4,500 meters high above the sea level. This is called to the plateau, not a mountain. It is maybe also remembered that the formation of the mountain range take a million of years. There is the most important here. It may be also remembered that the formation of the mountain range take a million of years. During this year, the internal force of the earth of lifting the land and the fighting against the erosion wearing it down. It is order to form one is a Mount Everest is the internal force must be pushed up to the land faster than the external force constantly is eroding. There is the most important. The Mount Everest internal force must be a push up and land faster than the external force constantly eroding. And therefore mountain are those uplifted to portions of the earth as a surface which have steps, slope and small summit area rising to more than thousands of meters above the sea level. The mountains have a maximum difference of the height between there is a high and low portions. That is the most important here. And the uplifted portion of the earth surface with the step, slope and the small summit area is rising above the 1000 meters are formed over a period of million of the years are called mountain. So what is a mountain? The mountain here uplifted portion of the earth as a surface with the step, slope and the small summited area arising above 1000 meters and formed over a period of million of years are called mountain. The here classification of the mountain, there is the most important here. On the basis of their mode of formation, the mountain has been to classified as a four type. The fold mountain, block mountain, volcanic mountain and residual mountain. There is the most important here classification of mountain here, four types. The first here, fold mountain. The fold mountain we have studied in the last lesson how to fold are formed in the rock stirred by their internal earth movements. The mountain range mainly consists of lifted to the folded cemented rock are called fold mountain. So what is a fold mountain here? The mountain range mainly consists of filtered or folded sedimentary rock are called fold mountain. When these rocks are subjected to the horizontal computational force for a million of years, they get the bend into up to down fall, and this lead to be formation of the anticlines and syncline. Such earth movements occur from to time and the left the fall to be considerable height, which result in the formation of fold mountain. There fold mountain here, the mountain which have been to formed by uplift of the mainly to folded sedimentary rock straight under the compressional force are called
fault mountains. Here show the map or distribution of the important of folded mountain on the world. There is the most important here. Name the rock mountains, Splendid mountains, mountains of Kulamka, that is the Himalaya, and the other. The Himalaya in the Asia, the Alps is the Europe, the Rockies in the Northern America, and the Andes in the South America are the most prominent fold mountain of the world. And this mountain range were to form during the most recent mountain is a buildings period. They are known as the young fold mountain. Soon off there is a mountain range, for example, Himalayas are still rising. There is the most important. Important also here, next point. Come here, a block mountain. The block mountain is the most important here. Block mountain are also formed by the internal earth movement. There is a block mountain is formed here internal earth movements. When the force of the tension act on the rock, there create a fault in them. When the land between to the two almost parallel fault is a rise above to the adjoining area, it is a form of block mountain. It may be also occur when the land on the outer side of the fault slips down to leaving an arising block between them. The rock composing stair fault level may be of flattenings and even folded. Block mountain is also called to the hardest. And the Vosges of the forest is a block forest, is a mountain, is a Germany, is a Syria, is a Nevada, and the North America are the typically example of block mountain. Here show the block mountain or horses. They are the most important here. Show the diagrams of different is here layered on their mountain. There is the most important diagram here. The next here is a volcanic mountains. Their volcanic mountain is also important. We have learned it is a preview lesson that is the interior of the earth extremely there is a hot. Due to the high temperature, deep inside the earth the rock turned into a molten magma. When this molten rock is a material is ejected to the earth as a surface during the volcanic eruptions. It is accumulated around the event and maybe take the form of the cone. The height of the cone increasing with the each eruptions and it is take the form of mountain. As these mountains are formed by the accumulation of the volcanic material. They are known as the volcanic mountains or mountain of the accumulations is a mount is a Mona, known as a Heavis Iceland. The mount is a Popa, is a Manemar, is a Vesus, is a Italis, is a Tocopaxis, is a Ecuador, and the Fuji's Yama in the Japan are example of the volcanic mountains. Here show the clear a volcanic mountain here. There is a volcanic mountain. The next here, decidual mountain. Decidual mountain here the weathering and different agent of erosions. River, wind, glacier, etc. are the constantly acting on their earth as a crust. As soon as elevated mountains range appear on the earth as a surface, the agent of the gradation begins. There is a work of leaving it down. To a large extent, the process of wearing down to depends on the slope and the structure of the rock. After thousands of years, soft rock are worn down into the sand and the hard rock are left standing up in the area that has been reduced in a height. And these are called residual mountain. The hill like a Nilgiri and Prasan, the Rajmahal and the Aravallis in India, for example of residual mountain. Friend, here the most important example here, Nilgiri, Prasan, Rajmahal and the Aravalli hill in India, there is example of residual mountain. Here show the most important residual mountain here. There is the most important diagram. There is a first, second and third there are mountain residual mountain here. यहाँ पर जो दोस्तों हम अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर कर रहे हैं प्रमुख के असल रूप और उनका आर्थिक महत्व। देखिए इसमें हम तीन
के विषय में पढ़ेंगे, पठार, पर्वत और मैदान के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसका आर्थिक महत्व क्या है। तो सबसे पहले हमारे समक्ष जो आया है पॉइंट, वो है पर्वत। देखिए पर्वत के विषय में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे और इसकी जो है आर्थिक महत्व पर भी हम प्रकाश डालेंगे, तो इससे जो है इम्पोर्टेंट हमारे साथ रहेगा। तो चलिए देखते हैं पर्वत में क्या कुछ बताया गया और क्या समझाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। कहते धरातल पर विद्यमान 3 विस्तृत जो स्थल रूप है, या तो पठार हो सकती है, पर्वत हो सकती है, मैदान हो सकती है, जो भूपट्टी के जो है विरूपण का परिणाम है। इसमें से पर्वत सबसे रहस्यमयी रचना होती है। पर्वत की रचना जो हुई है बहुत ही रहस्यमयी हुई है। पर्वतों द्वारा पृथ्वी की संपूर्ण सतह का जो है 27% भाग घिरा हुआ है। पर्वत पृथ्वी की सतह के ऊपर उठे हुए भाग हैं जो आसपास की भूमि से बहुत ही ऊंचे हैं, परंतु धरातल के सभी ऊपर उठे हुए भाग पर्वत नहीं कहलाते हैं। यानी उठे हुए भाग जो है पर्वत नहीं कहलाते हैं। किसी असल रूप के पहचानने के लिए ऊंचाई और ढाल दोनों को जो है सम्मिलित किया जाता है। यानी हर उठा हुआ चीज़ को जो है हम पर्वत नहीं कह सकते। इसके लिए आपको थोड़ा सा जो है ज्योग्राफिकली दिमाग लगाना पड़ेगा। कहते हैं ऊंचाई और ढाल दोनों को सम्मिलित इसमें किया जाता है और इसे नाते जो है तिब्बत की जो है ऊपर उठी हुई भूमि पर्वत नहीं कहलाएगी। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से कम 4500 मीटर है। तो इसको हम पर्वत नहीं कहेंगे, ये एक मैदानी क्षेत्र कहलाएगा। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि पर्वत श्रेणियों के बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। देखिए पर्वत जो है एकाएक नहीं बनता है, इसको बनने में बहुत लाखों साल लगते हैं और इस लंबी अवधि में आंतरिक बल जो है भूमि के ऊपर उठने में व्यस्त रहते हैं। यानी धीरे धीरे जो है भूमि के आंतरिक पार्ट जो है ऊपर की तरफ उठते रहते हैं। तो इसके विपरीत बाहरी बल इस पर ऊपरी जो उठी भूमि काटने, छाटने और अवरुद्ध करने में जुटे हुए रहते हैं और इस तरह जो है पर्वत का निर्माण होता है। माउंट एवरेस्ट ऐसे ऊंचे एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण तभी हो पाता है जब आंतरिक बल का जो है पर्वत जो निर्माणकारी या जमीन के ऊपर उठाने वाले कार्य जो है बाहरी बलों के अपर्दन कार्य की अपेक्षा अधिक द्रुत गति से होता हो। अंत पर्वत धरातल के ऊपर उठे हुए ये भूभाग हैं, इसके ढाल जो है तीव्र होते हैं और समुद्री तट से जो लगभग 1000 मीटर से भी अधिक ऊंचे हो सकते हैं। पर्वत की समुद्र की सतह से सामान्य ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक मानी जा सकती है। स्थानीय उच्चवाच लक्षणों में पर्वत की एक ऐसा असल रूप है जिसका उच्चतम और न्यूनतम भागों के बीच जो है सर्वाधिक अंतर होता है। निर्माण क्रिया के आधार पर पर्वतों को निम्न 4 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले हमारे समक्ष आता है वल्य पर्वत, दूसरा है खंड पर्वत, तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत और उसके बाद है अवशिष्ट पर्वत। तो ये चारों पर्वत जो है काफ़ी मायने में इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इन पर्वतों के बारे में। सबसे पहले हमारे समक्ष जो है वल्य पर्वत है। वलित पर्वत क्या है? हमने पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण जो है पर्वताकार शैलों में बलन पड़ते हैं। यानी बलन पड़ना स्वाभाविक बात है। वलित जो है पर्वताकार शैलों के ऊपर उठने के परिणाम स्वरूप बनी पर्वत श्रेणियों के वलित पर्वत कहते हैं। वलित जो है पर्वतदार शैलों पर लाखों वर्ष तक आंतरिक जो है क्षैतिज उत्पीड़न बल लगे रहते हैं, तो वे मुड़ जाते हैं और उनमें जो है उद्वलन और जो है नतवलन पड़ जाते हैं। कालांतर में ये जो है अपनियतित और अवनितियों के रूप में विकसित हो जाते हैं और इस प्रकार की जो है हलचलें समय समय पर होती ही रहती है और जब वलित शैल बहुत ऊंची प्राप्त कर लेते हैं तो वल्य पर्वत का जन्म हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है वल्य पर्वत का जन्म होना एक स्वाभाविक बात बन जाती है। अब देखिए यही बात अगर हम समझना चाहें तो संपीड़न बलों के परिणाम स्वरूप बनी वलित पर्वतदार शैलों को ऊपर उठने की वलित पर्वत कहते हैं। यानी संपीड़न बलों के कारण जो पर्वत का निर्माण होता है उसे हम वलित पर्वत कहते हैं। एशिया के हिमालय जो है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। यूरोप के जो है अल्प्स, उत्तर अमेरिका के रॉकी और दक्षिण अमेरिका के एंडीज संसार के प्रमुख वलित पर्वत में से माना जाता है और इन पर्वतों का निर्माण अत्यंत आधुनिक पर्वत निर्माणकारी युग में हुआ है। अंत यह सभी नवीन जो है वलित पर्वतों के नाम से भी जाना जाता है और इसमें से कुछ जो है पर्वत श्रेणी जैसे हिमालय पर्वत तथा अब भी जो है ऊपर उठ रहे हैं। यानी हिमालय पर्वत देखा जाए तो अभी भी जो है ऊंचा होता चला जा रहा है।
यहाँ पर आप देख सकते हो संसार के प्रमुख वलित पर्वत दिखाया गया है। एटलस हो गया, एंडीज हो गया, राकी पर्वतमाला हो गया, एप्लेसियन हो गया, इरोली पर्वत हो गया, इकोनलिसान हो गया, हिमालय हो गया। सारे के सारे पर्वत जो है वलित पर्वत का उदाहरण स्वरूप है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है खंड पर्वत। खंड पर्वत का निर्माण भी पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण ही होता है। जब प्रदार्थ शैल पर तनाव बल लगते हैं, जब प्रदार्थ शैल होते हैं उस पर जब तनाव पड़ते हैं तो उनमें दरार या भ्रश पड़ जाते हैं। जब लगभग दो समांतर भ्रंशों के बीच की भूमि आसपास की भूमि की तुलना में काफ़ी ऊपर उठ जाता है तो उस ऊपर उठी भूमि को जो है खंड पर्वत या जो भ्रशत पर्वत या भ्रश खंड कहते हैं। खंड पर्वत का निर्माण उस परिस्थिति में होता है जब दोनों भ्रशों के बाहर की भूमि नीचे बैठ जाती है और अवधों के बीच की भूमि उठ रही होती जाती है। खंड पर्वत को जो है होस्ट भी कहते हैं और खंड पर्वत में शैलों की परत वलित अथवा समतल में भी कोई भी हो सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है फ्रांस के वैसेज और जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट और उत्तरी अमेरिका के सिरो रानेवाद खंड पर्वत की विशेष उदाहरण में से एक माना जा सकता है। देखिए खंड पर्वत जो है कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक साइड जो है ज़मीन धंस गई है और दूसरी साइड जो है ज़मीन ऑटोमेटिक ऊपर उठ रही है। तो ये खंड पर्वत का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी बात है। देखिए यहाँ पर एरो से भी दिखाया गया कि एक तरफ धंस रही है, एक तरफ उठ रही है। उसके पश्चात हमारे समक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी जैसे नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा, जिसके विषय में हम पिछले चैप्टर में भी पढ़े थे कि पृथ्वी का आंतरिक भाग या तो भूगर्भ बहुत गर्म है, ये तो आपको भी पता है कि जो आंतरिक भाग है बहुत ही गर्म है। भूगर्भ के गहरे भागों में अत्यधिक तापमान के कारण ठोस शैले द्रव्य जो है मैग्मा में बदल जाते हैं। जब यह पिघला हुआ शैल पदार्थ ज्वालामुखी के उद्गार में जो है भूगर्भ से धरातल पर आता है तो वह मुख के चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं और ये जमकर जो है शंकु का रूप धारण कर सकता है। ज्वालामुखी के प्रत्येक उद्गार के साथ इस शंकु की ऊंचाई बढ़ती ही चली जाती है और इस प्रकार वह पर्वत का रूप ले लेता है। पर्वत जो ज्वालामुखी से निकले पदार्थों के जमा होने से बनते हैं उन्हें ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। संग्रहित पर्वत जो पर्वत भी कहलाते हैं, इसको संग्रहित पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। हवाई द्वीपों का जो है मेनालुआ, जो है मन्नेमार, बर्मा का जो है माउंट पोपा, इटली का जो है वेसुविलियस, इक्वेडोर का जो है कैटोपेक्सी, जापान का जो है फ्यूजियो यामा और ज्वालामुखी पर्वतों का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल जो है कई माननीय यूपीएससी एग्जाम के बच्चों के लिए भी अत्यंत जो है महत्वपूर्ण रहेगा। तो यही क्वेश्चन जो है यूपीएस में ही पूछे जाते हैं, तो बच्चे यहाँ वहाँ जो है भटक रहे होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ज्वालामुखी पर्वत जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट दर्शाने की कोशिश किया गया है। ये जो मैग्मा निकलती है तो आसपास इकट्ठा होगा तो ये पर्वत का रूप धारण करेगा, एक जर्नली सी बात है। तो ज्वालामुखी पर्वत जो है एक पर्वत निर्माण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल के तौर पे देखा जा सकता है। उसके पश्चात जो हमारा अगला है अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत क्या है? अब क्षय या अपरदन के विभिन्न कारक हैं। नदियाँ, पवन, हिमानी आदि धरातल पर जो है निरंतर कार्य करते ही रहते हैं। ये भूपट्टी की ऊपरी समतल को कमजोर करने के साथ उसे काटते छांटते रहते हैं। जैसे कि धरातल पर किसी पर्वत श्रेणी का उद्भव होता है तो क्रमण के कारक जो है अपरदन द्वारा उसे नीचा करना शुरू कर देते हैं। अपरदन कार्य शैलों की बनावट पर बहुत ही निर्भर करता है। हजारों वर्ष के बाद मुलायम शैलों कट कर बह जाते हैं तथा कठोर शैलों में बने भूभाग जो है उच्च भूखंडों के रूप में ही खड़े रहते हैं। इन्हें ही हम अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। यानी देखा जाए तो उच्च भूखंडों के रूप में ही खड़े रहते हैं, जिसे हम अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। भारत की अगर देखा जाए तो नीलगिरी इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है और पार्श्वनाथ तथा जो राजमहल की पहाड़ियाँ अवशिष्ट पर्वतों के सबसे अच्छा एग्जाम्पल के तौर पे देखा जा सकता है। अगर आपको लगता है कि अवशिष्ट पर्वत आपने देखा नहीं है तो डायग्राम में जैसे दिखाया गया है कुछ इसी प्रकार के जो है पर्वत आपको नजर आएगी, तो इसे ही हम अवशिष्ट पर्वत के नाम से जाना जाता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेयर, द इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस ऑफ माउंटेन। So what is the important here or significance of mountain here? Economical. There mountain are usually to use of flowing bay. First here the storehouse of resource.
There is a most important here. The first economical value here, a storehouse of resource. Mountain are the storehouse of natural resource. Large resource of the minerals are found in mountains. The Appalachian range in the United States is well known for the coal and limestone deposit. We get timber, lac, medicinally herbs, and woods for making a pulp from the forest of the mountain. Tea and coffee plantation and some fruits is a orchid have to be developed of mountain and hill slope. There is a most economical value of mountain here. The next year, generation of hydroelectricity. That is also important of economical value of mountain. Hydroelectricity is generated from to the water of the perennial river in their mountain range. The mountainous countries like Japan, Italy, and Switzerland, which is suffer from the shortage of coal, have developed the hydroelectricity. That is the most important. The important here economical value of here mountain. And third here abundant source of water. The perennial of river rising in the snow feed or heavier rain feed of mountain are the important source of water. They help in the promoting the irrigations and provided to water for many other uses. The next here is a formation of fertility plant. There is the most important here. The river that originate in the high mountain region bearing slide along with their water to the lower valley. This help in the formation of fertility plant. Fertility plant here is the most important. The greatest avenue plan of the northern India has been formed by the rivers Ganga, Satluj, and Brahmaputra. That is the most important. The next year, natural political frontiers. The mountain range do act as a natural political frontiers between countries and protect from their invasions of some extent. The Himalaya has formed a political frontier between India and China. There is a most important here is a natural political frontier. There is an example of India and China border. There is a political frontiers. And the next year, effect on the climate. Mountainous is area have a lower temperature and they serve to the climatic divide between two adjoining regions. The Himalaya, for example, for the barrier to be a movement of cold wind from Central Asia toward the Indian subcontinent, and they also force the south west monsoon to the ascent and the causing to the rainfall on the southern slope. And the last economical value of mountain here, tourist center. There is the most important for the common for the all. The tourist center. The pleasant is the climate and the beautiful sceneries of the mountain have led to their development as a center of tourist attraction. The tourist and hotel industries get additionally is encouragement in such a region. Simla, Nainital, Mussoorie, and Srinagar are some of the important hill stations of India which attract tourists all over the world. दोस्तों यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है पर्वत का आर्थिक महत्व। देखिए, अगर आपने पर्वत के बारे में जाना है तो पर्वत के आर्थिक महत्व के बारे में जानना भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। यदि हम पर्वतों की आर्थिक महत्व के विषय में बात करें तो ये कई मायने में इम्पोर्टेंट रहेगा और जानना भी बहुत ज़रूरी है। कहते हैं अगर हम इसके आर्थिक महत्व के विषय में चर्चा करें तो सबसे पहली बात तो यही आता है कि जो है संसाधनों के भंडार। पर्वत जो है कई संसाधनों के भंडार के रूप में देखा जा सकता है। ये कई एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पर्वत का आर्थिक महत्व जो है आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ यहीं देखने को मिलेगा, तो ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। कहते हैं संसाधनों के भंडार। सबसे पहले हमारा संसाधनों के भंडार, तो पर्वत प्राकृतिक संपदा से भंडार है, यानी पर्वत देखा जाए तो प्राकृतिक संपदा के सबसे बड़ा भंडार है। संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है अपलेशियंस पर्वतमाला कोयला और चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। पर्वत पर उगने वाले कई प्रकार के वनों में हमें विभिन्न उद्योग के लिए जो है इमारती लकड़ी, लाख, गोंद, जड़ी बूटियाँ तथा कागज उद्योग के लिए लकड़ी प्राप्त होती है। पर्वतीय ढलानों पर चाय या जो है फलों की कृषि का विकास हुआ है जो कि काफ़ी
आर्थिक तौर पे इसका जो है बहुत ही बेनिफिट है। उसके पश्चात अगर हम बात करें जल विद्युत उत्पादन के लिए, तो कहते हैं जल विद्युत उत्पादन के लिए आजकल जो है माउंटेनों का बहुत ही उपयोग किया जा रहा है। कैसे उपयोग किया जाता है? देखिए, पर्वतीय प्रदेश में बहने वाली नदियों के जल प्रांतों द्वारा जल विद्युत उत्पन्न की जाती है, क्योंकि वहाँ पर माउंटेन रहती है, पर्वत रहती है, तो ऊपर से पानी गिरेगी, तो जनरल सी बात है हम इसका विद्युत उत्पादन करने में इसका उपयोग किया जा सकता है। कोयले की कमी जो है वाले जो है पर्वतीय देश जैसे कि जापान, इटली, स्विट्जरलैंड में जो है जल विद्युत का जो है यहाँ पर पर्वतों के द्वारा जो है उत्पन्न किया जाता है, और ये कई मायने में जो है अपना जो इन्होंने विकसित किया है। उसके बाद है जल के समीप भंडार। जल के असीम भंडार यहाँ पाया जाता है। कहते हैं ऊंचे जो है हिमाच्छादित या भारी वर्षा वाले पर्वतों से निकलने वाली सदाबहीन नदी या जल का सबसे बड़ा भंडार होता है। उनसे नहरें निकल कर खेतों की सिंचाई की जा सकती है, जिससे विभिन्न फसलों का अधिक उत्पादन होता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है उपजाऊ मैदान जो है मैदानों के निर्माण में सहायक। देखिए, पर्वत जो होती है उपजाऊ मैदानों के निर्माण में कई मायने में इम्पोर्टेंट होती है। ऊंचे पर्वत से निकलने वाली नदियां कटाव द्वारा मिट्टी बहाकर निचली घाटियों में जमा कर जाती है, जिससे उपजाऊ मैदान का निर्माण होता है। आपने देखा भी होगा कि पहाड़ों से जितने भी गाड़ आती है, मिट्टी आती है, वो हमारे समतल में बिछ जाती है, और ये काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है जो कृषि के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है। उत्तर भारत का विशाल मैदान गंगा, सतलुज और जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे अच्छी देन है। उसके पश्चात अगर हम राजनीतिक सीमाओं की बात करें, तो पर्वत दो देशों के बीच जो है राजनीतिक सीमाएं बनाते हैं तथा जो है कुछ हद तक आपसी आक्रमण से भी बचाते हैं। हिमालय पर्वतमाला भारत और चीन के बीच राजनीतिक सीमा बनाए हुए हैं। इससे जो है उनको जो है भारत पर अटैक करने में भी बहुत ही दुष्कर कार्य लगते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष जलवायु पर प्रभाव। देखिए, पर्वतों पर नीचे तापमान पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि पर्वतों पर जाने से जो होता है वहाँ पर काफ़ी नीचा तापमान पाया जाता है, यानी बहुत ठंड होता है। पर्वत दो प्रदेशों के बीच जलवायु विभाजक का कार्य भी करता है। उदाहरण के लिए हिमालय पर्वतमाला मध्य एशिया से आने वाली गतिशील पवनों को भारत में आने से रोकती है। वो दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों को भी रोक कर उन्हें दक्षिण ढलानों पर वर्षा करने के लिए बाध्य करती है। तो पर्वत का जो है सबसे अधिक इम्पोर्टेंट जलवायु के रूप में देखना जो है स्वाभाविक बात रहता है। उसके पश्चात सबसे इम्पोर्टेंट जो है पर्यटन का केंद्र स्थान। देखिए, पर्यटन कहते हैं किसी भी देश के अर्थव्यवस्था के लिए जो है पर्यटन होना बहुत ज़रूरी है। तभी तो भारत का एक वर्ड है अतिथि देवो भव, क्योंकि जितना भी हमारे देश में अतिथि आएंगे दूसरे देशों से, इतना ही हमारा देश जो है इकोनॉमिकल अर्थव्यवस्था में मजबूत होगा। तो पर्वतमाला जो है इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। बात अगर करें पर्वतमाला के केंद्र यानी पर्यटन केंद्र के रूप में, तो प्राकृतिक सौंदर्य केंद्र या स्वास्थ्यवर्धक स्थान होने के कारण बहुत से पर्वतीय स्थल जो है पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो जाते हैं। ऐसे स्थानों पर पर्यटन एवं होटल व्यवसाय विकसित हो जाते हैं। भारत के अगर शिमला देखा जाए, नैनीताल देखा जाए, मसूरी, श्रीनगर पर्वतीय नगरों के उदाहरण हैं। आपने कभी भी अगर नाम देखा हुआ कहाँ जाना है तो आप शिमला, नैनीताल, मसूरी और श्रीनगर की ही बात करते हैं, क्योंकि ये स्थल जो है पर्वतीय क्षेत्र के साथ साथ यहाँ का दृश्य जो है बहुत ही मनमोहक है और देखने योग्य है। यहाँ तक कि इंडिया के लोग तो आकर्षित होते ही होते हैं, प्लस विदेश के लोग भी इसको देखने के लिए दूर दराज से यहाँ पर जो है पर्यटक के रूप में आते हैं, और ये सारी दुनिया के जो है सैलानियों को काफ़ी आकर्षित करती है और काफ़ी उनको जो है अच्छा लगता है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो था ख़त्म हो जाता है। आगे का टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका देखना आप नहीं भूलना। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना। इसमें से दो बातें इंपॉर्टेंट रहता है। एक तो जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में आपने तिरपान सेंटर का हेल्प करना है। दूसरी बात ये रहता है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके हित में रहेगा, तभी जो है आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा। अगर आप यूट्यूब पे जो वीडियो की रिसर्च करोगे, कोई भी टॉपिक रिसर्च करोगे तो शायद तिरपान सेंटर का ना आए। अगर आपको तिरपान सेंटर अच्छा लगता है, समझ भी अच्छा है, तो आप जो है चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो इसका होम पेज मिल जाएगा, जहाँ पर आपको सभी वीडियो जो है एक लाइन से मिलेगी। ठीक है, उस वीडियो में से जो भी आपके समझ के लिए ज़रूरी है, आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है, उसको देखिए, समझिए और विचार कीजिए।